So, Physics Chapter 10, Magnetic Field due to Electric Current. Section number 10.12, Magnetic Field produced by a current in a circular arc of a wire. So, AB is the arc of the wire which is carrying current I. And we need to find out what is the magnetic induction because of this. Okay? So, we will consider a very small element of this wire. इस वायर का बहुत छोटा सा हिस्सा हम कंसीडर करेंगे. दैट पार्ट, दैट लेंथ ऑफ वायर इज DL, isn't it? DL. सो यहाँ पर जो वेक्टर होगा I into DL बार, ये जो वेक्टर है I के डायरेक्शन में DL. सो दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन. यहाँ का जो वेक्टर होगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन I into DL बार. यहाँ पर जैसे जैसे उसका पोजीशन हम चेंज करते जाएंगे वैसे IDL बार का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता जाएगा. एंड R बार इज दिस वेक्टर. R बार इज द वेक्टर along the radial direction. So this is R bar. तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि I and DL bar at every point this R bar and I DL bar they are going to be at right angles. Okay? अब इसकी वजह से Biot-Savart's law की अगर हम बात करेंगे by using Biot-Savart law, the magnetic induction because of this element is given by dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dl bar cross R bar upon R cube. I dl bar cross R bar upon R cube. लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि भाई इन दोनों में एंगल तो 90 डिग्री का है. सो दिस विल बिकम mu 0 upon 4 pi I dl R sin theta sin 91, okay, divided by R cube. मतलब this will become R square. So what do we get there? dB, the magnetic induction due to the current in the very small element of this wire, is given by dB is equal to mu 0. ये था dB बार. अब हम उसको स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं. mu 0 upon 4 pi I dl upon R square. Well, this is equation number 10.47. Please check whether this is clear to you all. Okay? अब यहाँ का इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा and it is given by right hand rule. मतलब अगर इसको हम होल्ड करते हैं हमारे राइट हैंड में and if I is giving me the direction of the current then these curved fingers are giving me the direction of the magnetic induction. तो यहाँ का जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो अंदर की तरफ होगा. सो वो क्रॉस होगा एक्चुअली. और इस तरफ का अगर कहीं पॉइंट है तो वो डॉट होगा क्योंकि यहाँ से ऊपर आएंगे मैग्नेटिक लाइंस और यहाँ से अंदर चली जाएंगे मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. अब हम तो ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में ये AB सेक्शन को हमने कट किया है और इसके लिए मैग्नेटिक इंडक्शन dB है. आगे और एक जो हिस्सा होगा उसके लिए dB और एक होगा उसके लिए dB. सो व्हाट विल बी द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन B इज इक्वल टू, वी विल इंटीग्रेट द मैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज ऑफ दिस इंडिविजुअल segments and that will be given by integration of mu 0 upon 4 pi I dl upon R square. Well, इसमें से mu 0 upon 4 pi and I ये सब कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकालते हैं. So this will become mu 0 upon 4 pi I, this is all constant and this is dl upon R square. अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है. I have to integrate this now. Okay? मुझे इसे इंटीग्रेट करना है. कैसे करेंगे भाई इसको इंटीग्रेट? अभी हाउ आर यू गोइंग टू इंटीग्रेट दिस नाउ? तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा कि आई कंसिडर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस. अगर ये टोटल एंगल थीटा है, ठीक है, इसका छोटा सा हिस्सा अगर हम कंसिडर करें ऐसे, तो ये जो वेरी स्मॉल एंगल है उसको मैं d थीटा बोलूंगा. दिस इज R and this ये जो segment length है this is nothing but DL. So I use the formula S is equal to R theta. In that sense DL is equal to R into D theta. I hope this is clear to you all. S is equal to R theta से. Is that clear? So let me substitute for DL. DL के लिए मैं substitute करूँगा R into D theta. ठीक है? So if I substitute this will become mu 0 upon 4 pi I integration of R into d theta upon R square and this is going from A to B. ये A से लेकर B तक क्योंकि d थीटा पहले 0 होगा, 0 से लेकर थीटा तक जाएगा. So at A
थीटा का वैल्यू 0 है एंड एट बी थीटा का वैल्यू थीटा है, ठीक है। और इस दौरान ये r कैंसिल होगा एंड r इज अ कांस्टेंट बाय द वे, तो ये r बाहर आएगा। सो व्हाट यू गेट देयर, दिस विल बिकम म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r इंटीग्रेशन ऑफ d theta which is going from theta is equal to 0 to theta is equal to theta. Now this is 1d theta, 1d theta का इंटीग्रल थीटा आएगा, so this will become mu 0 upon 4 pi I upon r and this is theta. But I know that यहाँ पर जो टोटल लेंथ है उसका उस टोटल लेंथ के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। I upon, yeah, that is the answer here. This is b is equal to, actually यही आंसर उन्होंने दिया है। This is equation number 10.46. This is equation number 10.46 that we want. अगर मुझे यहाँ पर फुल सर्कल या हाफ सर्कल के लिए चाहिए, if I want b, अगर ये पूरा का पूरा सर्कल होगा, let me calculate that also. b for full circle, पूरे सर्कल के लिए होगा, तो थीटा का वैल्यू वहां पर कितना होगा 2 पाई। लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर, इट विल बिकम म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r इनटू 2 पाई r। इसमें से r कैंसिल होगा, I अपॉन r इनटू 2 पाई, और ये पाई भी कैंसिल होगा 2। सो अगर फुल सर्कल होगा, b फॉर फुल सर्कल इज गिवन बाय म्यू 0 अपॉन म्यू 0 I अपॉन 2, म्यू 0 I अपॉन 2 ये बन जाएगा। शायद मैंने r यहाँ पर कहीं कट किया है क्या, होगा नहीं, r नहीं होगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई होगा, सिर्फ r कैंसिल नहीं होगा, इज इक्वल टू 2r। सो दिस इज द b फॉर टोटल कॉइल, सर्कुलर कॉइल। अगर इसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, उस कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो सिर्फ मुझे इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So what is B because of a coil? N number of turns अगर coil के होंगे तो this will become mu 0 Ni upon 2R. Check here please. और अगर मुझे सिर्फ सेमी सर्कल के लिए चाहिए, so B for semi circle, the magnetic induction because of the semi circular coil, semi circle. तो semi circle के लिए theta is equal to कितना होता है 180 डिग्री, that is pi. तो थीटा इज इक्वल टू पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे बताइए, म्यू 0 अपॉन 4 पाई म्यू 0 I अपॉन 4 पाई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r इनटू पाई। इसमें से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज b फॉर सेमी सर्कल, b फॉर सेमी सर्कल इज गिवन बाय म्यू 0 I अपॉन 4r। अब ये सारे फॉर्मूले वहां पर उन्होंने दिए हैं, दैट इज सेमी सर्कल के लिए, सर्कल के लिए, it's all given on page number 242. Please have a look at that. Okay, and you can take the screenshot. ये आपको as a proof पूछा जा सकता है एग्जाम में। Check if it is clear to you all. Tell me if any doubts are there, and take the screenshot please. On page number 242, there is an example 10.5. A wire has 2 straight sections, okay, and 1 arc. The wire has 2 straight sections and 1 arc as shown in the figure. So ये है figure, इसके अंदर ऐसे 2 sections है। This is the first section, second section and third section. इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है, ठीक है। तो डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, क्या हो गया, द डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर O। यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए ऑफ द सेमी सर्कल बाय द 3 सेक्शंस इंडिविजुअली एंड द टोटल। ओके, यहाँ पर बायट-सावर्ट लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे, इफ आई अप्लाई द बायट-सावर्ट लॉ फॉर द फर्स्ट सेक्शन, इफ आई से दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, इस फर्स्ट सेक्शन के लिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I। अगर ये डायरेक्शन ऑफ I है तो यही होगा तुम्हारा जो I dl बार का भी डायरेक्शन, I dl बार का डायरेक्शन यही होगा, और R बार का डायरेक्शन है इस सेक्शन के लिए ये, दिस इज R बार का डायरेक्शन। सो फॉर द फर्स्ट सेक्शन
डीएल बार एंड आर बार, इसमें एंगल है, एक वेक्टर उधर है एक वेक्टर इधर है, तो इन दोनों में एंगल है 180 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हियर एंड साइन थीटा is equal to 0, and therefore the magnetic induction dB because of the first section is equal to mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. तो sin theta अगर 0 आ रहा है तो dB1 is equal to 0. Same thing is over here also. यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर जो IDL, I is in that direction, therefore IDL bar is also in this direction. एंड आर बार जो है इसके लिए आर बार ऐसा है, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा इज आल्सो 0, एंड देयरफॉर व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द थर्ड पार्ट dB3 इज अगेन साइन थीटा 0, तो ये भी 0 होगा. नाउ कम्स दिस पॉइंट. यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर आप देखते हो एट एनी पॉइंट, इफ वी से एट एनी पॉइंट, इसलिए सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के लिए हमने जो कैलकुलेट किया वो तो डायरेक्ट लिख लेते हैं. dB2 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन क्या लिखा था हमने वहाँ पर 4 पाई सेमी सर्कल. इट इज एंगल थीटा के लिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर थीटा ना, आई अपॉन आर थीटा. तो थीटा फॉर सेमी सर्कल इज 180 डिग्री, दैट इज पाई रेडियन. तो पाई पाई गेट्स कैंसल. So dB2 is equal to mu 0 I upon 4R. तो dB1 0 है, dB2 इतना है, dB3 इतना है. So what will be the total magnetic induction? B is equal to addition of all three. लेकिन dB1 और dB3 तो 0 है. तो what will be the final answer? It is equal to mu 0 I upon 4 capital R. हमने capital R use किया, हम capital R use करेंगे. Is this okay? So that is the answer. चेक इफ एनी डाउट्स आर देयर. और उसका डायरेक्शन अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो दिस इज इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड. ओके, ऐसे होगा. एक सेकेंड ना, ऐसे नहीं होगा. हेलो, डायरेक्शन इज Section 10.13 axial magnetic field produced by current in a circular loop. Now here this is a circular loop which is shown, and this loop is carrying some, I'll draw a little bigger one. ये है वो circular loop. And this is carrying certain current I, we say. इसमें we say this is the x direction and this is the y direction. Okay? तो राइट हैंड सिस्टम की वजह से x to y टर्न करेंगे तो दिस विल बी द z डायरेक्शन. दिस इज z डायरेक्शन. ओके, अब यहाँ पे करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. तो हम बात करते हैं कि भाई, और इसका रेडियस यहाँ पर दिस इज पॉइंट O, इसका रेडियस R है. वी कंसिडर द स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस वायर हियर एंड ओवर हियर. दिस इज DL लेंथ ऑफ द वायर. तो I इंटू DL जो होगा वेक्टर, तो इस प्रकार होगा ऐसे. दिस इज I इंटू DL वी से. एंड वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P. दिस इज पॉइंट P. वो कितने डिस्टेंस पर है? वेल, वो डिस्टेंस Z पर है. दिस इज Z एक्सिस एंड दिस इज डिस्टेंस Z. दिस इज डिस्टेंस Z. ओके, एंड ये है P से यहाँ तक की अगर मैं ज्वाइन करूँ तो दिस इज R बार. एक्चुअली ये रहा R बार. दिस इज R बार. सो वैसे देखा जाए तो R बार ये इसको परपेंडिकुलर ही होगा, लाइक दिस. दिस इज अ राइट एंगल. समझ में आ रहा है क्या? ये है DL, तो R बार उसको परपेंडिकुलर ही होने वाला है. प्लीज अंडरस्टैंड. ठीक है. अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक
इंडक्शन होगा बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ. व्हाट इज बायोट-सावर्ट लॉ? बायोट-सावर्ट लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हाट इज dB इज इक्वल टू, और dB बार इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई. म्यू 0 अपॉन 4 पाई क्या आएगा बताइए? दिस विल बिकम आई डी एल बार क्रॉस आर बार. अगर मुझे उसका स्केलर चाहिए तो आई टेक मैग्नीट्यूड अपॉन आर क्यूब. नाउ आई डी एल बार एंड आर बार दे आर एट राइट एंगल्स, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पर. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ये है इक्वेशन नंबर 10.50. चेक दैट प्लीज. ओके, सो इन दिस केस आई डी एल बार क्रॉस आर बार, ये दोनों 90 डिग्री से, तो इसलिए ये बन जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. तो ये आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, इसलिए ओनली आर स्क्वायर. और एक चीज, अगर ये आर है और ये जेड है तो यहाँ पर पाइथागोरस हो सकता है. पाइथागोरस से आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर. तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर लूंगा. सो दिस विल बिकम dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये हो जाएगा. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 10.52. प्लीज चेक वेदर दिस इज क्लियर टू यू ऑल. ओके, समझ में आ गया सबको ये? ओके, नाउ अब मुझे इसका डायरेक्शन चाहिए. अब देखिए ऐसा है कि ये रहा वेक्टर dl बार, दिस इज वेक्टर dl बार इस डायरेक्शन में, और हमको पता है कि dl बार एंड r बार इसको परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर. कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम dl बार टू r बार. r बार का डायरेक्शन मैंने उल्टा दिखा, ऐसा होना चाहिए r बार का डायरेक्शन. हाँ ठीक है. सो dl बार टू r बार अगर मैं इसको कर्ल करता हूँ तो ये जो वेक्टर dB बार होगा उसका डायरेक्शन कहाँ पर आएगा? दिस dB बार इज डायरेक्टेड वेयर. ये जो dB बार होगा ये इन दोनों को भी परपेंडिकुलर होगा. इट विल बी परपेंडिकुलर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इस प्लेन को परपेंडिकुलर होने वाला है. इज दिस ओके? हेलो. तो ये जो dB बार होगा वो इस प्रकार होगा. दिस इज, ये इन दोनों को भी परपेंडिकुलर ऐसा. हाँ, हेलो हेलो हेलो. या सो बेसिकली dB बार ये जो होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच इज फॉर्म बाय r बार एंड dl बार. क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है कोई भी, अगर ये है dl बार और ये है r बार, तो इसको परपेंडिकुलर होगा ये. इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, तो उसे हम परपेंडिकुलर दिखाने के लिए ऐसे दिखा देते हैं यहाँ पे. दिस इज dB बार. अब dB बार के दो कंपोनेंट्स हम देखेंगे यहाँ पे. इस dB बार के दो कंपोनेंट्स होंगे. एक कंपोनेंट होगा, I'll resolve this dB बार. एक कंपोनेंट ऐसे होगा जिसको मैं बोलूंगा dB परपेंडिकुलर, और ये एक दूसरा कंपोनेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज dB along z एक्सिस. सो इसको मैं बोलूंगा dBz along the z डायरेक्शन. ठीक है, ये तो इसको परपेंडिकुलर है, उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया. एक है परपेंडिकुलर डायरेक्शन dB परपेंडिकुलर और दूसरा dB along z एक्सिस. ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा है, दिस इज एंगल थीटा, तो यहाँ का भी एंगल थीटा ही होगा, और इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है. अब देखिए ऐसा है कि यहाँ पे ये जो मैंने सारा कैलकुलेशन किया है इट इज फॉर दिस कंपोनेंट ऑफ द वायर दैट इज दिस dl बार. इसी तरह से यहाँ पर जो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो वायर है, वायर का टुकड़ा है या पार्ट ऑफ द वायर, दिस इज dl, इसकी वजह से भी जो भी कुछ dB आएगा, इसकी वजह से जो भी कुछ dB आएगा वो भी इसी प्रकार से होगा. इसकी वजह से जो भी कुछ dB आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और उसका dB परपेंडिकुलर जो होगा, उसका dB परपेंडिकुलर इधर होगा ऐसे. दिस इज dB परपेंडिकुलर बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वायर, और उसका dBz ऐसे ही होगा. मतलब व्हाट वी सी हियर इज इधर का dB परपेंडिकुलर इज बैलेंस्ड बाय इधर का dB परपेंडिकुलर, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. और एक्चुअली हमने इस वायर को छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांट दिया है.
ओके, डिफरेंशिएट किया हुआ है, और हर एक कंपोनेंट की वजह से डीबी परपेंडिकुलर अपोजिट कंपोनेंट का डीबी परपेंडिकुलर कैंसिल होगा, लेकिन हर एक कंपोनेंट का डीबी जेड जो है वो ऐड होता जाएगा, सम होता जाएगा, इंटीग्रेट होता जाएगा. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? सो फॉर द एंटायर लूप मुझे जो बी मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी बी परपेंडिकुलर, बी अलोंग द जेड एक्सिस. पूरे लूप के लिए जो भी मुझे मिलेगा, आई विल से बी जेड विच इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ डी बी जेड, इंटीग्रल ऑफ डी बी जेड. अब ये डी बी जेड क्या है? दिस डी बी जेड इज एक्चुअली कोसाइन ऑफ, क्योंकि ये कोसाइन कंपोनेंट है, सो इट विल बी डी बी इंटू कॉस थीटा. भाई अब ये कॉस थीटा क्या है? कोई नहीं, कॉस थीटा यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा. सो कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो व्हाट इज कॉस थीटा? हियर इज कॉस थीटा is equal to adjacent side, which is r upon hypotenuse is capital R. I hope this is clear to you. But we know that r is equal to this, so ये बन जाएगा capital R upon square root of z square plus r square. Now let me substitute all these things here. तो मुझे जो इंटीग्रेशन करना है वो क्या होगा? dbz, dbz मतलब ये. और what is db? db is this. So this will become u0 upon 4 pi I dl upon z square plus r square into cos theta, मतलब this, so this is into r, और ये square root है और ये वही है, तो it will become raised to 3/2. Is this clear to you all? Please check whether this is okay. Okay. Now इसमें से जो कांस्टेंट्स है उसको हम बाहर निकालेंगे, जैसे कि mu0 upon 4 pi I is a constant, capital R is a constant, Z and R ये सब constant है, तो ये सब हम बाहर ठीक है उसको अंदर ही रखेंगे, तो दिस विल बिकम mu0 upon 4 pi I R. I think this is also constant, Z upon I R ये सब constant है, and this is Z square plus R square raised to 3/2 and integral of dl. अब मुझे बताइए कि ये dl सबको ऐड करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, सम करते जाएंगे या इंटीग्रेट करते जाएंगे ओवर द टोटल सर्कल. So this integral will give me the circumference of this circle, which is equal to 2 pi r. So let me substitute here 2 pi r. So this will be giving, ये pi cancel होगा and 2 2s are. So this will become r square. So what is bz or b total? It is given by bz is equal to mu0 upon 2. mu0 upon 2. Okay. IR square divided by z square plus r square bracket raised to 3/2. Well, this is the formula for the total magnetic induction along the axial direction, axial magnetic field, and that is equation number 10.53. Please check whether this derivation is clear to you all. Please check. And this is along the axis, इसका डायरेक्शन होगा along the axis. Please check whether this is clear to all. Section 10.14 हम देख रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस फॉर करंट फ्लो. अब देखिए ऐसा है कि in the previous section we have seen this is the coil which is carrying current I. It is in the XY plane and along the Z direction it will have its magnetic induction. The magnetic induction is shown here like this. This is B bar or BZ bar. And its value is given by mu0 upon 4 pi. Can anybody tell me the formula? I r square upon z square plus r square raised to 3/2. बराबर है क्या? This is the formula. 2 times mu0 upon 2. mu0 upon 2. So this is the formula for Bz. We have derived it just now. Just before some time we have derived it. अब यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस कैसे होंगे मुझे पता करना है, कि बिकॉज दिस इज फॉर द पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस p जो कि डिस्टेंस z पर है, लेकिन अगर ये पॉइंट p इन द प्लेन ऑफ द कॉइल होगा तो यहाँ पर मतलब z इज इक्वल टू 0, तो इसमें z इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो ना. सो वी विल गेट, अगर ये कॉइल है एंड वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन हियर, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट कैन बी फाउंड आउट बाय सब्स्टिट्यूटिंग z इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन. So that will be what p is equal to mu0 upon 2 I r square
और यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो इसे r स्क्वायर रेस टू 3/2 मतलब r क्यूब हो जाएगा, ये r क्यूब मतलब इसमें से r स्क्वायर चला जाएगा। सो दिस इज b इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2r। दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ओके, एट द सेंटर, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर। अगर इसमें एक टर्न है तो ऐसा आएगा, इफ देयर आर n टर्न्स ऑफ द कॉइल, और n टर्न्स ऑफ द कॉइल b for this coil is given by mu 0 ni upon 2r, mu 0 ni upon 2r। तो ये है इक्वेशन नंबर 10.54 and this is equation number 10.55। please check and put it in the box please। और उसका डायरेक्शन, the direction is again given by right hand rule, direction is again given by curl the fingers in the direction of the current, the outstretched thumb will give us the direction of the bar, which is okay, this is the direction of the current। any doubts about this? please check whether this is clear। hello, इसके पहले जो हमने इसका एक वेरिएशन देखा था कि भाई पॉइंट P इज इन द प्लेन, अब यहाँ पर एक नया वेरिएशन मैं देख रहा हूँ कि दिस कॉइल्स बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा, मतलब दिस कॉइल इज समथिंग लाइक दिस, ये कॉइल जो है ये कुछ इस प्रकार है, लंबा कॉइल है, मतलब यहाँ पर अगर आपके x एक्सिस y एक्सिस है एंड दिस इज द z एक्सिस, ये z एक्सिस है एंड दिस z इज वेरी वेरी लार्ज, इसे z बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू, ये रेडियस ऑफ द कॉइल जो होगा वो r होगा ना, r, सो z इज मच मच लार्जर देन r। इतना लार्ज है कि हम r को यहाँ पर निगलेक्ट ही कर लेते हैं डिनोमिनेटर में निगलेक्ट करेंगे। सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक इंडक्शन इन दैट केस, इट विल बी म्यू 0 अपॉन 2 I r स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर हम सिर्फ निगलेक्ट करेंगे तो z स्क्वायर रेस टू 3/2 विच इज इक्वल टू z क्यूब, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। नाउ दिस टाइप ऑफ कॉइल इज कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड, क्या कहते हैं इसको, सोलेनॉइड, जिसका लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेडियस और डायमीटर, ओके। अब इस ये जो कॉइल है इसका एरिया क्या होता है, कॉइल का एरिया होगा A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो इसको मैं अगर पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ, if I multiply, so that will become mu 0 upon 2 I r square upon z cube। well let me multiply it by pi, तो ये क्या बन जाएगा, this will become a, isn't it? तो that will become Ez is equal to mu 0 upon 2 pi a I upon z cube। ये है इक्वेशन नंबर 10.56, but this equation is applicable only for the case of solenoid। solenoid वो होता है जिसका z component, मतलब z is much much larger than radius, वो ऐसा कॉइल है कि जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा है as compared to the radius। so ये रहा। अब इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है, प्लीज चेक वेदर दिस इज क्लियर टू यू एंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। यही पेज नंबर 244 पर they are talking about the magnetic moment of a circular loop। magnetic moment, magnetic कौन सा मोमेंट, डाइपोल मोमेंट फॉर अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के लिए क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब, कि ये तो मैंने कल ही आपको बताया था। लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्विकली मैं आपको बता दूं, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, बराबर है, these are the magnetic lines of force, they start from north pole, they end at the south pole, they never intersect each other। तो इनको इस मैग्नेटिक सर्किट को पूरा करने का काम जो करता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कल मैंने इसको म्यू बोला था, आज मैं इसको एम बोलूंगा एंड इसका फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ एम इंटू 2L, ऐसा होता है। कल मैंने इसको म्यू बोला था, ठीक है, एम इज द पोल स्ट्रेंथ।
अब मैं आपको बता दूं कि यही चीज मिलेगा अपने को इफ आई एम कंसिडरिंग अ सोलेनॉइडल कॉइल, ऐसा कॉइल विच इज कैरिंग द करंट। और उस कॉइल का ये वाला फेस इस तरह से है कि इसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसे, और यहाँ पर कैसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो इस वजह से बोथ दीज थिंग्स आर इक्विवेलेंट। हैव आई एक्सप्लेन दिस अर्लियर? आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस अर्लियर। ठीक है, तो यहाँ का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो इस तरह से होगा। दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको कल हमने म्यू बोला, म्यू बार बोला था, म्यू बार, अगर आपको याद होगा। एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस? इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू एन ई, ए एन आई, ये मैंने आपको बताया था। अब मैं बात करूंगा बी जेड की, जो हमने अभी अभी देखा कि भाई अगर ये है ऐसा कॉइल और इसकी वजह से व्हाट इज बी जेड? बी जेड इन दिस केस इज गिवन बाय बी जेड इज इक्वल टू म्यू जीरो IA divided by 2 pi ZQ. This is equation number 10.56 that we have seen just now. Okay. अगर इस इक्वेशन में मैं आपको n से मल्टीप्लाई, दिस इज फॉर वन पोल, वन टर्न ऑफ द कॉइल, अगर n टर्न्स ऑफ कॉइल है तो a होगा। तो व्हाट इज दिस ANI इज इक्वल टू, ANI इज इक्वल टू म्यू, लेकिन ये म्यू विच इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, ये म्यू इज, लेकिन वो म्यू और ये म्यू अलग है, बिकॉज दिस म्यू जीरो इज द परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। तो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन मैं इसको म्यू ना बोलते हुए एम बोलूंगा, जो किसी की बुक में किया है। ठीक है, तो ये एम बन जाएगा। तो व्हाट विल बी बी जेड इन दिस केस इज गिवन बाय बी जेड हियर इज गिवन बाय बी जेड बार इज इक्वल टू म्यू जीरो एम अपॉन 2 पाई जेड क्यूब। ये हो जाएगा एम म्यू जीरो अपॉन 2 पाई, म्यू जीरो अपॉन 2 पाई एम अपॉन जेड क्यूब। ठीक है, इज दिस ओके? अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, ताकि ये बन जाएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। सो व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2m अपॉन जेड क्यूब। दिस इज इक्वेशन 10.57। प्लीज चेक वेदर दिस इज क्लियर टू ऑल। अब ये है मैग्नेटिक के लिए, दिस इज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए। यही चीज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज अगर करते हैं तो वहां पर ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, और E बार इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इट इज गिवन बाय, यहाँ पर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई है तो इधर आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। माइंड में चेक हियर। ओके, इधर 2m अपॉन जेड क्यूब है, तो यहाँ पर उसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है इसके जगह पर P होता है। सो दिस विल बिकम 2p अपॉन जेड क्यूब। बाकी सब फॉर्मूला वैसा का वैसा। दिस इज इक्वेशन नंबर 10.58। प्लीज चेक वेदर दिस इज क्लियर टू यू। 10.58 नहीं हुई है, 10.57 के बाजू में ही है। सो प्लीज चेक वेदर दिस इज क्लियर टू यू। If any doubts are there, okay, you can take the screenshot of the same.